Hello students, मैं BL Sharma Maths sir discussing exercise 3.3 of chapter 3, that is pair of linear equations into variable of class 10 mathematics. And this is really very important exercise, and the question number 1 is on your screen. Solve the following pair of linear equations by the method of elimination and also by the method of substitution, and the two equations are here. That is x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4. We have to solve it. ये दो इक्वेशंस हमें दे रखे हैं। इन दोनों इक्वेशंस को दो मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। मींस वी हैव टू फाइंड आउट the value of these unknown variables, that is x and y. See how to do. First of all, elimination method. We write the first equation as 1x plus 1y is equal to 5. Since यहाँ पे लिखा नहीं है, here the variable, the coefficient is not written, so its coefficient is 1 and that is equal to 5. I have written 1x plus 1y is equal to 5. इसको equation number 1 mark करें. Mark this as equation number 1. And this 2x minus 3y is equal to 4. Mark this as equation number 2. Now what to do? A very important, this elimination method is also known as coefficient equating method. Coefficient equating method means दो वेरिएबल देखे यहाँ पे है, एक x है और एक y है। इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल कर देना चाहिए। कैसे करते हैं देखिए, ये पहले हमने x का देखा, x का कोफिशिएंट 1 है, इसमें x का कोफिशिएंट 2 है। इसका एक्सचेंज कर लीजिए। इस पूरे फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें और पूरा जो सेकंड इक्वेशन है उसको 1 से मल्टीप्लाई करें। मींस x के कोफिशिएंट को से मल्टीप्लाई करना होगा। सी हाउ? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 एंड इक्वेशन 2 by 1। हाउ टू डू इट, कैसे करेंगे देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 1x plus 1y is equal to 5। आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, वी हैव 2x plus 2y is equal to 10। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दीजिएगा। सिमिलरली इक्वेशन सेकंड को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। So multiply 1 by the second equation, that is 2x minus 3y is equal to 4. That is 2x minus 3y is equal to 1। हम पता है कि अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर ही आता है। इस as I told you, this method is also known as coefficient equating method. So here you will see that the coefficient of x are equal. Now this is 2, this is also 2x। दोनों इक्वेशंस में अब हमने देखा कि x का कोफिशिएंट इक्वल हो गया। हमें इन दोनों इक्वेशन से x को एलिमिनेट करना है, x को गायब करना है। कैसे करते हैं देखिए। पहले पता लगा लिया है कि दोनों x के कोफिशिएंट इक्वल हैं। तो नाउ व्हाट वी डू, यू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ऐसे करने से इनके साइन चेंज करने होंगे। सो व्हाट यू डू, चेंज, if this is plus, make it minus, this is minus, make it plus, and this is plus, make it negative, minus। साइन चेंज कर दिए। सब्ट्रैक्शन में इसके साइन चेंज करने होंगे। Now you see this is plus 2x and this is minus 2x, cancel। plus 2y and now plus 3y। So plus 2y plus 3y में ऐड करेंगे, it gives us plus 5y। 10 minus 4, that is 6, so we can write now 5y is equal to 6। And 2 plus 3y 5y, 10 minus 4, that is 6। Write 6 here, and the value of y will be 6 upon 5।
Now we have to get the value of the other variable, that is x. For that, what we do in the method that put y is equal to 6 upon 5 in either of the two equations, either in equation number 1 or equation number 2. Putting the value of y is equal to 6 by 5 in equation number first, that is 1x plus 1y is equal to 5. So x, you can also write 5 minus y. X is equal to 5 minus y, or in place of y, we have put here 6 upon 5. Taking LCM and solving it, it gives 5, 5, the 25 minus 6, 19 upon 5. So this is value of x here. So write x is equal to 19 by 5 and y is equal to 6 by 5. And that's all for the elimination method. And now we come to the second method, that is substitution method. We already have done so many questions based on this substitution method. So from the very first equation, that is x plus y is equal to 5, write x in term of y. So write x is equal to 5 minus y. Now put this value x is equal to 5 minus y either in equation number 1 or equation number 2. We put the value of x in the equation of second, because we have taken this from equation number 1. ये जो वैल्यू हमने लिया है x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, इक्वेशन 1 से लिया है, इसलिए इस वैल्यू को अब हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना चाहिए. सो इन प्लेस ऑफ y हियर we write, sorry, in place of x we write 5 minus y. So see, write 2 as it is. In place of x, write 5 minus y, minus 3y as it is, and 4 as it is. On further simplification, we get minus 5y is equal to minus 6, or y is equal to 6 upon 5. See here, it was also here 6 upon 5. So same values will be there. अब हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, तो इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट यहां पे पुट कर दीजिएगा. You will get the value of x directly. So put x is equal to 5 minus y. In place of y, we put 6 upon 5. So we get x is equal to 5 minus 6 upon 5. Taking LCM, 5, 5 is 65 minus 25 minus 6, that is 19 upon 5. So x is equal to 19 by 5. So we can write x is equal to 19 by 5 and y is equal to 6 by 3. You will see here, आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए, x is equal to 16 by 5 and y is equal to 6 by 5. Here also, x is 19 by 5 and y is equal to 16 by 5. Same answers are here. That's all for question number 1. Solve part second, solve by both the methods, by elimination method and by substitution method. So first of all, by elimination method. We mark 3x plus 4y is equal to 10 as equation number 1 and 2x minus 2y is equal to 2 as equation number 2. Here is, since the elimination method is also known as coefficient equating method, elimination method को हम coefficient equating method भी कहते हैं. यहाँ पे देखिए, ये आप चाहें तो x से कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं और चाहें तो आप y का कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं. आप अगर x के कोफिशिएंट्स को आप इसमें एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो x एलिमिनेट हो जाएगा. y के कोफिशिएंट को अगर एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा. हियर we the coefficient of first equation of x is 3 and coefficient of second equation of x is 2. आप क्या करें कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इसको 2 से मल्टीप्लाई करिएगा. फर्स्ट को आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा. पूरा फर्स्ट इक्वेशन है, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा. और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है,
उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करिएगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई सेकेंड बाई 2 and equation of that is 3x plus 4y is equal to 10। देखिए, इसको 2 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, देखो आप देखिएगा, यहां पे हम चाहते हैं कि y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। तो देखिए ये 4y है और ये 2y है। ये तब पॉसिबल है जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। तो y का कोफिशिएंट 4y हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज रहने देते हैं, एज इट इज रहने का मतलब है मल्टीप्लाई बाई 1 और एज इट इज। Don't change in equation number 1 and multiply the second equation by 2. So thus we get 2 multiplied by this equation. Second equation 2x minus 2y is equal to 2. That is 4x minus 4y is equal to 4. That is equation number 4। देखिए, पहले से ही यहाँ 3x और 2x है, यहाँ पे हमने किया है x के कोफिशिएंट को इक्वल, ये 4y है और यहाँ पे ये 2y है। अगर इस पूरे इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 4y आ जाएगा, जैसे आ चुका है यहाँ पे देखिएगा। हमने यहाँ पे एक y के कोफिशिएंट को इक्वल करने की कोशिश की है, लेकिन अब y को कैसे एलिमिनेट करें, देखिए अगर आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। बेटर वे ये है कि ऐड कर दीजिए, +4y माइनस 4y कैंसिल हो जाएंगे, +3x प्लस 4x 7x हो जाएगा और 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। So here we will not be subtracting, we will adding equation number 3 and equation number 4. So what will happen here? 7x plus 0 is equal to 14c। यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, +4y एंड -4y कैंसिल, 3x plus 4x 7x, 10 plus 4 14। So on further simplification, x is 14 by 7, that is 2. So x is equal to 2 and this is the value of x. Now substitute this value of x in either of the any equation, equation number 3 और 4, किसी भी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। Putting in equation number 1, we get x plus 3y is equal to 10। जहां भी x है, देखिए ये x है, यहां पे इस x की वैल्यू को यहां रिप्लेस कर दीजिए, इन प्लेस हियर। In place of x, you write 2. So 3 into 2 plus 4y is equal to 10। फिर से सिंप्लीफाई करें ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 6 प्लस 4y दैट इज 10 और 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 दैट इज 4। So 4y is equal to 4, so y is equal to 1। So we can say hence x is equal to 2 and y is equal to 1 answer from elimination method। Now we will solve it by the method of substitution। 3x plus 4y is equal to 10, this is equation number 1, and 2x minus 2y is equal to 2, that is equation number 2। From first write x in term of y, so 4x is equal to 10 minus 3x और y is equal to 10 minus 3x upon 4। इसे कहते हैं राइटिंग x इन टर्म ऑफ y। आप चाहो तो y इन टर्म ऑफ x भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो हार्म। देखिए, बट नाउ व्हाट वी डू, पुट दिस वैल्यू ऑफ y because we have taken from first equation, so replace this value of y in second equation, means here you have to replace, यहां पे y का वैल्यू 10 minus 3x upon by 4 आपको रिप्लेस करना होगा। So that is 2x minus 2y is equal to 2, but in place of y, this 2x as it is, minus 2 as it is, in place of y replace by 10 minus 3x by 4 माइनस दैट इज इक्वल टू 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सो टेकिंग एलसीएम, टेक एलसीएम 4, so 8x
minus 2, 10 minus 3x, that is 8. On further simplification, 8x minus 20 minus plus 6x is equal to 8. 8x plus 6x, left side 14x, and right hand side 8 minus 20, when goes right side becomes plus, is equal to 28. So x is equal to 28 by 2. That is 2. See here, x is here is also 2. And here is also 2. The values will be same. Now, as we have done in this, you have to replace the value of x here. यहाँ पे x का वैल्यू रख दीजिए. In place of x, you write 2. Y as it is, that is 10 minus 3 into, in place of x, write 2, divided by 4. 10 minus 6 by 4. So y is equal to 4 upon 4. 4 upon 4, that is 1. So y is equal to 1. So we can say x is equal to 2 and y is equal to 1. Answer. That's all for this question. Solve by both the methods, by method of elimination and substitution. And this is question number part third of question number 1, exercise 3.3. First of all, by method of elimination means coefficient equating method. The first equation is 3x minus 5y is equal to 4, and the second equation is 9 minus 2y is equal to 7. Here it is better, since 3x minus 5y is equal to 4, equation number 1, and 9x minus 2y is equal to 7, equation number 2. If you wish to make the coefficient of x equal, then what you do, you multiply equation number 1 by 3. इस equation number 1 को 3 से multiply कर दीजिए. देखिए 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये भी 9x है, ये भी 9x हो जाएगा. सेकेंड इक्वेशन को आप 1 से मल्टीप्लाई करें, मीन्स आपको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. अगर आप चाहते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल हो, तो इस इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई कर दें. या हम चाहते हैं कि हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो so 3 means multiply this by 3. So 3 3s are 9x, 5 3s are 15, and 4 3s are 12. Mark it as equation number 3 and इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज, क्योंकि इसमें कुछ चेंज ही नहीं करना है. यहां पे हमने देखा, वी ऑब्जर्व हियर दैट कोएफिशिएंट ऑफ x इज सेम एज दिस इज 9x, दिस इज आल्सो 9x. ये दोनों x के कोएफिशिएंट इक्वल है. अब इसको यहां से हम एलिमिनेट कर सकते हैं. x को कैसे करेंगे? ऐड करने से एलिमिनेट नहीं होगा. अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, सेकेंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x एलिमिनेट हो जाएगा. तो राइट हियर देखिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा. दिस विल बी कैंसिल आउट. नाइन एक्स कैंसिल आउट बाई 9x, सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिल होगा. मैंने यहां पे साइन माइनस 15y, ये प्लस 2y हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस 13y, और ये प्लस 12 माइनस 7 के प्लस 5. लेकिन बाद में इनका आप साइन चेंज कर दीजिएगा, तो इट विल बी 13y इज इक्वल टू -5. और आप चाहें तो यूं भी कर सकते हैं, सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा. देखिए, -2y में से प्लस 15y प्लस 13y, 7 माइनस 12 दैट इज -5. इट डजेंट मीन्स हार्म अस, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती. यू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम थर्ड और थर्ड फ्रॉम सेकंड, नो प्रॉब्लम. सो 13y इज इक्वल टू -5. व्हाट विल बी y विल बी -5 अपॉन 13. ये देखिए, इसको मार्क इट इक्वेशन नंबर 4, और वी हैव गोट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, वन अननोन टर्म, दैट इज y इज इक्वल टू -5 by 13.
अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की। किसी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकंड में, y का वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए -5/13। सो पुट y -5, y is equal to -5/13 in equation number 1, and equation number 1 is 3x minus 5y is equal to 4। यहां पे ये y है, इसकी जगह आप पुट करिए -5/13। So 3x as it is, -5 as it is, in place of y, put -5/13 is equal to 4 as it is. On further simplification, we get x is equal to 9/13. So x is 9/13 and y is -5/13. This is answer, and we have solved it by the elimination method or coefficient equating method. हमने इसको coefficient equating method से या उसी मेथड को कहते हैं elimination method से सॉल्व कर लिया है, और अब हमें करना पड़ेगा substitution method से। फर्स्ट इक्वेशन लीजिए और राइट x in term of y। x is equal to, what is first term? 3x minus 5y is equal to 4. So 3x is equal to 5y plus 4, and will be 5y upon plus 4 upon 3। इसको कहते हैं राइटिंग x इन टर्म ऑफ y। अब वो सिंपल सा रूल है, इस x की वैल्यू को क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन से लिया है, अब इस सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस करिए जहां भी x है। हियर इन प्लेस ऑफ x यू राइट 5y plus 4 upon 3। 9x as it is. In 9 as it is, in place of x, you write 5y plus 4 upon 3, and minus 2y as it is, 7 as it is. Simplify करना होगा। 13y is equal to -5। देखिए 3 और ये 9 कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 जा 9, और 3 5 जा 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 13y। अब आप 10th क्लास में आप इतना कर ही सकते हो। 13y इज इक्वल टू -5, सो y इज इक्वल टू -5/13। हियर इट इज ऑल्सो -5/13। क्या करें x की वैल्यू के लिए? इस y की वैल्यू को, विच इज -5/13, आप यहां रिप्लेस कर दीजिए, यहां पर। In place of y here, you will get the value of x. So the value of x is 9/13. So hence x is 9/13 and y is -5/13. Same values हैं. You will see here the value of x and y are same. That's all for this question. Solve by both the methods, by elimination method and by substitution method. The first equation is x upon 2 plus 2y upon 3, that is -1, taking 6 LCM। देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप 6 एलसीएम लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। सो 3x प्लस 2 × 4y इज इक्वल टू 6 इंटू -1, दैट इज -6। ये फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से हमें ये मिलेगा। सिमिलरली टेक डिनोमिनेटर ऑफ x1 और इसका एलसीएम लीजिए 3, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 ये हो जाएगा। इस तरह से हमें सिंप्लीफाई किया इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, और इस तरह से हमने इसको लिख दिया है। यहां देखने के बाद हमें पता चलता है कि यहां पे इस मेथड को, एलिमिनेशन मेथड को हम कहते हैं कॉफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड। पहले से आप देखेंगे कि ये भी 3x है और ये भी 3x है। पहले से x का कॉफिशिएंट इक्वल है। यू कैन सी हियर द कॉफिशिएंट ऑफ x इज सेम हियर, दिस इज 3x एंड दिस इज 3x। x को कैसे एलिमिनेट करें? देयर इज वन वे, you subtract this 3x from this 3x, means subtract
इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मीन्स द टर्म्स ऑफ दैट सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए साइन चेंज करने होंगे हमें। ये प्लस माइनस हो गया, माइनस टू प्लस एंड प्लस टू माइनस। हियर प्लस 3x एंड माइनस 3x cancel out. Plus 4y plus now 1y because we have to use this sign now. 5y minus 6 and minus 9 minus 15. So 5y is minus 15. So we can write y is equal to minus 15 upon 5. That is minus 3. Mark it इक्वेशन नंबर 3। y का वैल्यू आ चुका है। इस y का वैल्यू y इज इक्वल टू माइनस 3 है। आप किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दें, इसका पुट कर दें इधर इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। 3x एज इट इज प्लस 4y इज इक्वल टू ये माइनस 6 है। 3x एज इट इज, 4 एज इट इज, y की जगह लिखिएगा माइनस 3 is equal to minus 6 as it is. Now solid for x, 3x is equal to 6, so x is equal to 2. So the value of x is 2 here. We can write, hence x is equal to 2 and y is equal to minus 3. Answer. This method is called elimination method or coefficient equating method. Now we come to the second method, that is substitution method. First equation लीजिए या second equation से write x in term of y. So taking second equation, x is equal to y प्लस 9 अपॉन 3। देखिए ये 3x है, 3x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई, सो x इज इक्वल टू y प्लस 9 इज इक्वल टू 3। आप यूं भी लिख सकते थे y इज इक्वल टू 3x माइनस 9, नो प्रॉब्लम। इसको क्योंकि हमने ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से लिया है इसलिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। पुट दिस वैल्यू x इज इक्वल टू y प्लस 9 अपॉन 3 इन द फर्स्ट इक्वेशन। सो राइट 3 in place of x, you write y plus 9 upon 3। ये x है, इसकी जगह आपको लिखना होगा y plus 9 upon 3। So writing y plus 9 upon 3 plus 4y as it is equal to minus 6। 3 and 3 cancel, so y plus 9 plus 4y minus 6, 4y is equal to minus 6, so you can write 5y is equal to minus 15। So y is equal to minus 3। See, the same answer we are having here. Now substitute this value is equal to minus y is equal to minus 3 here in the here. इसमें इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, x is equal to y plus 9 by 3. So x is equal to y, in place of y you put minus 3. So x is equal to minus 3 plus 9 upon 3. So plus 6 upon plus 6, minus 3 plus 9, that is plus 6 upon 3, that is 2. So x is equal to 2 and y is equal to minus 3 answer. This is word problem based on numerator and denominator means fraction, and the question is if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction becomes or reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? देखिए फ्रैक्शन में एक नोमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो पहले तो हम ये मान लेते हैं कि फ्रैक्शन हमारा क्या है।
Let the fraction be x upon y, where x is numerator and y is denominator. ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है जिसको हम चाहते हैं, वी वांट टू। अब इसमें क्या होता है कि इफ वी ऐड वन टू द नुमरेटर, नुमरेटर में वन ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू वन, सो इट इज गिवन। देखिए ये नुमरेटर में वन ऐड किया और डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट किया। फिर से देखिए, नुमरेटर एक्स प्लस वन, डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज वाई, सब्ट्रैक्ट वन, ये किसके इक्वल हो जाता है? इट इज गिवन, इट इज इक्वल टू वन, सो राइट इक्वल टू वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करें और सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें। सो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई माइनस वन, और यू कैन से एक्स इज इक्वल माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, इक्वेशन नंबर वन। सेकंड कंडीशन और दे रखी है, क्या दे रखा है? द फ्रैक्शन बिकम्स वन अपॉन टू, कब बन जाएगा वन अपॉन टू? इफ वी ओनली ऐड वन टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में ऐड करना है वन, नुमरेटर में कुछ भी नहीं करना है, तो किसके इक्वल हो जाएगा? इट विल बी, द फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू वन बाई टू सी। अगेन एक्स नुमरेटर में कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में वन ऐड कर देना है, किसके इक्वल हो जाएगा? इट इज गिवन, इट विल बी इक्वल टू वन अपॉन टू। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें, सो टू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन और टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन, इक्वेशन नंबर टू। इस तरह से हमने दो इक्वेशंस बना लिए हैं, टू वेरिएबल हैं। अब आप किसी भी मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करिएगा। सी, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, ये फर्स्ट हमारा इक्वेशन है, और सेकंड है टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन। यहां एलिमिनेशन से करना आसान इसलिए हो जाएगा, देखिए पहले से ही वाई के कोएफिशिएंट इक्वल है। ये कैसे वाई एलिमिनेट होगा? अगर मैं इसका साइन चेंज कर दूं, मीन सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, क्या होगा? देखिए ये साइन प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। सी, एक्स माइनस टू, प्लस एक्स माइनस टू एक्स एंड माइनस वाई, ये कैंसिल ही हो जाएगा, माइनस टू एंड माइनस वन, सो यू कैन राइट एक्स इज इक्वल टू थ्री, because minus x is equal to minus 3, so x is equal to 3. Now we have to find out the value of y. So x is equal to 3, you replace here x minus y is equal to minus 2, कहीं भी आप रिप्लेस कर दीजिएगा इस वैल्यू को, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। So now put x is equal to 3 in x minus y is equal to minus 2, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिएगा। So x is in place of x, you write 3 minus y as it is equal to minus 2. फिर से सिंप्लीफाई करिए, y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5। x means numerator is 2, y means denominator is 5. So what is the fraction? What is the fraction? Numerator upon denominator means 3 upon 5 is the fraction. So the fraction is x upon y, or 3 upon 5 answer. That's all for this question. Very good question. 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old Noori and Sonu? क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पे दो पर्सन है, एक नूरी है और एक सोनू है। प्रेजेंट एज उनकी हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन एक कंडीशन दे रखी है कि नूरी और सोनू की 5 साल पहले जो नूरी थी उसकी एज सोनू की एज की 3 टाइम्स थी, थ्राइस थी, 5 साल पहले, नॉट प्रेजेंट एज। और 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर्स जो नूरी की एज होगी उस वक्त सोनू की एज की डबल होगी, ट्वाइस होगी, और हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना। वी हैव टू फाइंड आउट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू। हम इसको बहुत तसल्ली से, आराम से इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे। देखिए कैसे। पहले ये देखिए, ये सोनू है और ये इसका हम समझ लेते हैं कि इसकी मदर है वो नूरी है। देखिए सोनू और ये नूरी है। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी हमने एक्सियस सपोज किया कि मान लीजिए आज की डेट में प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज एक्सियस एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई बिफोर 5 years ago. Today the age of Noor is X years, so 5 year before 5 years means 5 year ago, the age of Noori was X minus 5 years. And age of Sonu before 5 years was Y minus 5 years. 5 साल पहले। आप अपनी एज का देखिए, अगर आपकी आज एज 15 ईयर है तो 5 साल पहले कितनी थी? 15 - 5। इट इज नॉट 5 - 15 नहीं थी, 15 - 5। सो प्रेजेंट एज में 5 कम कर दीजिए। तो देखिए ये नोरी, एज ऑफ नोरी 5 years अगो, दैट वाज X - 5 years। सिमिलरली एज ऑफ सोनो 5 years अगो, टुडे प्रेजेंट एज इज Y years। तो 5 साल पहले कितनी थी इसकी? Y - 5 years। हमने प्रेजेंट से 5 साल पहले चले गए हैं। अब कंडीशन ये दे रखी है, फिर से पढ़िए। 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड सोनो। नूरी की एज थी वो सोनो की एज की 3 टाइम्स थी। सो राइट द एज ऑफ नूरी, दैट इज X - 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स एज ऑफ सोनो। सोनो एज Y - 5। सिंप्लीफाई एंड कन्वर्ट इनटू अ वेरी सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। X - 5 इज इक्वल टू 3Y - 15 और X - 3Y इज इक्वल टू -10। ये इक्वेशन नंबर हमने 1 लिख लिया है यहां पे। राइट। अब एक कंडीशन और दे रखी है। 10 years लेटर, 10 साल बाद, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एक्स ईयर है, तो 10 साल बाद कितनी होगी? अब व्हाट विल बी एज ऑफ नूरी आफ्टर 10 years? X + 10 year। आज आपकी एज 15 ईयर है, तो 10 साल बाद कितनी होगी? 15 + 10, दैट इज 25। सो एड टू प्रेजेंट एज। एज ऑफ नूरी आफ्टर 10 years, प्रेजेंट एज एक्स ईयर, सो X + 10 years। Similarly, age of Sonu after 10 years, that is Y + 10 years। सोनू की प्रेजेंट एज अब Y ईयर है, तो 10 साल बाद हो जाएगी Y + 10 years। बट व्हाट इज गिवन? उस वक्त नूरी की एज होगी वो सोनू की एज की डबल होगी, बिकॉज इट इज गिवन ट्वाइस। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो एज ऑफ नूरी दैट टाइम, that is twice of age of Sonu that time after 10 years. So X + 10, that is equal to twice of Y + 10. Simplify and convert a simple equation. So X - 2I. So you can write X - 2I is equal to 10. This is question number second. We have two equations here. This one and this one. You can solve these equation by either method, by substitution method or by elimination method, and get the value of X and Y.
See, first equation is x minus 3y is equal to minus 10 is equal to x minus 3y is equal to minus 10. And second equation is x minus 2y is equal to 10. आप यहां पे देखेंगे, देखिए यहां पे देखेंगे आप, देखो x का कोफिशिएंट सेम है, दिस इज 1x एंड दिस इज ऑल्सो 1x. x को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, साइन चेंज कर दीजिए इनका. चेंज साइन, प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस एंड प्लस टू माइनस. प्लस एक्स एंड माइनस एक्स कैंसिल आउट. माइनस 3y प्लस 2y दैट इज माइनस वाई. माइनस 10 एंड माइनस 10 दैट इज माइनस 20. दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 20 आएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 20. प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस 20, दोनों तरफ नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस 20. सो वाई इज इक्वल टू 20. क्या है वाई? द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज वाई ईयर्स. सो प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज वाई ईयर्स. सोनू की प्रेजेंट एज वाई ईयर्स मीन्स 20 ईयर्स है. एक्स का वैल्यू पता करना होगा आप हमें, यहां इसमें पुट कर दीजिए वाई का वैल्यू. रिप्लेस y is equal to 20 in equation number 1 or in equation number 2 here. Now put y is equal to 20 in x minus 3y is equal to minus 10, which is equation number 1. X as it is, minus 3 as it is, in place of y, you write 20 is equal to minus 10. So x is equal to 50. Minus 10 इधर जाएगा plus 60, so x is equal to 50. So the value of x is equal to 50, and what is x? The present age of Nouri is x years, so the present age of Nouri is 50 years, and present age of Sonu is 20 years. Therefore, present age of Nouri 50 years, present age of Sonu 20 years, and that's all for this question. This is the third part. Read the question twice. दो बार पढ़ें, तब तक रीड करें, तब तक हम क्वेश्चन को ढंग से अंडरस्टैंड नहीं कर लेते. एंड द क्वेश्चन नंबर, दिस थर्ड पार्ट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. देखिए कोई 2 डिजिट का नंबर है और उन दोनों के डिजिट का सम 9 है. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए सोल्व करते हैं इसको. वी आर टेकिंग x एंड y is late digit at ones place or units place. X is digit at tens place. So digit at tens place is x and digit at units place is y. इसको बहुत ढंग से समझने की जरूरत है. वेरी 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 इजी, अदरवाइज यस. देखो, now write down, let the tens digit and units digit of a number of a 2 digit number be x and y. इस डिजिट से नंबर कैसे बनाते हैं? सो द नंबर इज 10 into digit at tens place प्लस डिजिट एट यूनिट्स प्लेस. ये नंबर का फॉर्मूला होता है. ये इसको 10 से मल्टीप्लाई करिए और ये y ऐड कर दीजिए. सो दैट इज 10x प्लस वाई. ऑर्डर रिवर्स हो जाए, मीन्स y इधर आ जाए और x इधर चला जाए, तो क्या करेंगे? रिवर्सिंग नंबर इज इक्वल टू डिजिट एट टेंस प्लेस प्लस 10 इंटू डिजिट एट यूनिट्स प्लेस. देखिए ये जो 10 यहां पे था, अब ये 10 यहां आ जाएगा, मीन्स x प्लस 10y. पेन से आप अपनी नोटबुक में ये फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा, द नंबर और रिवर्सिंग नंबर का, क्योंकि जैसे डिजिट्स के क्वेश्चन होंगे हमें इन दोनों फॉर्मूलाज की आवश्यकता होगी.
We will require these two formulas when we do the questions based on digits, and now we have to start it. What is given? It is given that the sum of the digit, that is 9, means x in दोनों को ऐड कर दें, x plus y, that is 9. It is given that x plus y is equal to 9. एक और बात दे रखी है, 9 times this number means 9 times this number is equal to twice the reversing number, is equal to twice of this reversing number. So given, also given, 9 times the number is equal to twice the reversing number. 9 as it is. In place of the number, you write 10x plus y. 2 as it is. In place of reversing number, you write x plus 10y. Now multiply and simplify. 90x plus 9y is equal to 2x plus 20y. Now make it a very simple equation by taking, so 88x minus 11y is equal to 0. इसको फिर से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. देखिए 11 कॉमन है, सो डिवाइड दिस बाय 11, दिस बाय 11, दिस बाय 11. सो डिवाइड both terms, left hand side and right hand side, by all the terms by 11. 11 से आप डिवाइड करिएगा राइट हैंड ईच टर्म को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी. तो देखिए ये आएगा x, 88x minus 11y is equal to 0. So it becomes 8x minus y is equal to 0. 11 से डिवाइड किया 8x, 11 से डिवाइड किया 1y. So 8x minus y is equal to 0. Thus we have got two equations. One is this one, and second is this one. Now by any method, you get the value of x and y, solve for x and y by elimination method or by substitution method, whatever method you know better, you apply that. So 8x, x plus y is equal to 9, 8x minus y is equal to 0. आप यहां देखेंगे कि y का कोएफिशिएंट सेम है. क्या करें, इन दोनों को ऐड ही कर दें. तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, 1x plus 8x 9x is equal to 9. So 9x is equal to 9. So x is equal to 9 upon 9, that is x is equal to 1. What is x? Digit at tens place we have got, digit at tens place एक है यहाँ पे, it is 1. But we also need digit at units place, y. So you write here x plus y is equal to 9. x की जगह 1 लिखेंगे तो y will be 8. y is equal to 9 minus 1. So y is equal to 8. y का वैल्यू 8 आ चुका. देखिए नंबर भी हमें मिल चुका. x की जगह ये लिखे यहाँ पे 1 and here y 8. So the number is 18. Digit at tens place 1, digit at units place 8, और आप इसको यूं भी लिख सकते हो. You can also write like this. The number is formula में put कर सकते हो 10x plus y. So 10 in place of x you put 1, in place of y you put 8, and get answer 10 into 1 plus 8. That is 18. So the required number is 18 answer. That's all for this question. A very interesting, very good question. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. मीरा को एक दिन बैंक जाना पड़ा 2000 रुपीज के लिए, और उसने जो बैंक का कैशियर उनसे बोला कि भाई मुझे यू हैव टू गिव मी रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स.
₹50 और ₹100 का नोट मुझे चाहिए। टोटल नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स जो मीना लाई वो है 25 नोट्स, और टोटल अमाउंट 2000 है। 50-50 के और 100-100 के टोटल नोट्स 25 है। अगर उनकी उनका अमाउंट कैलकुलेट करें तो ₹50 का टोटल अमाउंट और ₹100 का नोट का टोटल अमाउंट मिला के हो जाना चाहिए ₹2000। कैसे करेंगे देखिए। लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी एक्स। ₹50 के एक्स नोट लाए और ₹100 के वाई नोट्स आए। दोनों नोट मिला के 25 हो जाना चाहिए, मीन्स एक्स प्लस वाई इट शुड बी 25, सो यू कैन राइट हियर। सो सी, these are ₹50 notes and ₹100 notes। ये टोटल इनको गिने और इनके नोटों को गिने, काउंटिंग है, ये अमाउंट नहीं है। तो टोटल 25 नोट हैं, 25 नोट्स हैं। लेकिन इन दोनों का अमाउंट कैलकुलेट करें तो 2000 है। पहले क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ₹50 नोट्स प्लस नंबर ऑफ ₹100 नोट, दैट इज एक्स प्लस वाई, दैट इज 25। इक्वेशन नंबर 1, वेरी सिंपल। ₹50 के ₹100 के दोनों नोट्स मिला के 25 नोट्स हैं, 25। एंड द सेकेंड इज, देखिए अगर एक नोट 50 होता है ₹50 का, एक नोट में ₹50, दो में 2 × 50 × ₹100, 3 में 3 × 50, ₹150। लेकिन अगर एक्स नोट है तो एक्स में कितना रुपया हो जाएगा? एक्स इंटू 50, दैट इज 50 x रुपीज। एंड नंबर 1, नंबर 2, इन वन नोट ₹100, two note 100 and 120, three note 100 into 3 300, four notes 100 into 400, लेकिन नंबर ऑफ नोट्स कितना है यहाँ पे? y। so the amount of ₹100 notes will be 100 y। लेकिन टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट इज ₹2000। राइट हियर ₹2000। मार्क इट, इक्वेशन नंबर 2। Now you have got the two equations. You can simplify it by the method of substitution or method of elimination. Whatever method you like, you can do it. So, कोफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड से हम करेंगे। देखिए ये 50 है तो इसको भी 50 बनाना चाहते हैं, तो इस पूरे इक्वेशन को फर्स्ट को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सो 50x प्लस 50y, और 25 को 50 से करेंगे, 25 को 50 से करेंगे, इट विल बी 1250। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अब इस सेकेंड को और थर्ड को सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि इसका एक्स कॉफिशिएंट और इसका एक्स कॉफिशिएंट सेम है। देखिए यहां पे ये 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, ये इक्वेशन नंबर 2 था। 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250, इक्वेशन नंबर 3 है। एक्स का कॉफिशिएंट दोनों में सेम है, ये दोनों सेम है। एक्स को एलिमिनेट करने के लिए आपको इसको सेकंड थर्ड इक्वेशन को सेकंड में से सबट्रैक्ट करना होगा। उसके लिए आपको साइन चेंज करने होंगे। देखिए ये -50x हो जाएगा, प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। 50x और -50x कैंसिल, 100y माइनस 50y इक्वल टू 50y। सो इसको सबट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 50y इज इक्वल टू 2000 माइनस 1250, दैट इज 750। y is equal to 750 upon 50, that is 15। सो नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, ₹100 का 15 है, ₹100 के 50 नोट्स हैं ये। बट नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। इस y को कहीं भी यहां पुट कर दीजिए। देखिए x प्लस वाई इज 25, y 15 है तो x होएगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, सो x इज इक्वल टू 10।
आ गया हमारा आंसर। तो देखिए ये 50 रुपए के 10 नोट हैं और 100 रुपए के 15 नोट हैं। इस क्वेश्चन को हम आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए 50 रुपए के 10 नोट हैं तो अमाउंट हो गया 50 × 10 500 रुपीज। 100 रुपीज की 15 नोट्स हैं, मीन्स 15 × 100 1500 रुपये का, तो ये हो गया 500, ये हो गया 1500 + 500, दैट इज 200। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4। Last question, very good question. And this question says that a leading library has a fixed charge for the first 3 days. फर्स्ट पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है। उसके बाद अगर एक दिन भी आपने लेट किया तो पर डे यू हैव टू पे समथिंग, एडिशनल चार्ज विल बी पेड बाय यू। सरिता ने 27 रुपीज पे किए। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने 7 डेज बुक रखी और 27 रुपीज पे किए। तो देखिए फर्स्ट 3 डेज का तो ₹100 और जो एडिशनल चार्ज है पर डे उसका कुछ सपोज कर लेते हैं। While Susie paid ₹21 for the books she kept for 5 days, find the fixed charge and the charge for extra days. Let the fixed charge for the first 3 days be rupees X. पहले 3 दिन का आपका फिक्स चार्ज है, वो X रुपीज का अमाउंट है, X रुपया लगेगा। एंड उसके बाद में एक दिन भी रखा तो पर डे रुपीज Y लगेगा। ये आपकी लाइब्रेरी है। अब हम देखेंगे कि कितने दिनों के लिए। 7 डेज के लिए रिपीट 27 लगते हैं, तो देखिए ₹100 तो फिक्स चार्ज हुआ और बाकी कितने दिन बचे। 7 डेज में से 3 डेज का ₹100 पे कर चुके हैं। बाकी 4 डेज का पर डे रुपीज वाई विल बी चार्ज। 4 डेज का होगा X + 4Y = 27। ये फॉर द फर्स्ट 3 डेज। टोटल 7 डेज हैं तो फर्स्ट 3 डेज का ₹X और जो रिमेनिंग 4 डेज का अमाउंट होगा 4 × Y, दैट इज 27। इसी तरह से 5 डेज का कितना पे करना पड़ेगा, फिक्स चार्ज ₹X और 3 डेज का पे कर चुके हैं ₹X। 2 डेज लेफ्ट, सो 2 डेज का हो गया Y के हिसाब से, दैट इज X + 2I अकॉर्डिंग टू per day extra charge for per day ₹Y. So for extra 2 days, 2Y will be there, and the total amount it is given, it is ₹21. So these are two linear equations, and we have done. हमने इक्वेशन बना लिए हैं, अब इसको आपको सॉल्व करना है। यू कैन सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय कोएफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड। देखिए पहले से ही x का कोएफिशिएंट इक्वल है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सेकंड को फर्स्ट में से। x एक कैंसिल, 4y - 2i = 2i, 27 - 21, that is 6. So what is y? Y is 3. So extra, the per day charge for extra days, that is ₹3 per day. Now get the value of x, put y is equal to 3 in equation x + 4y = 27. So x + 4 in place of y you put 3. So x + 12 = 27. So x is equal to 15. So fixed charge is ₹15 and the charge per day
extra after 3 days, that is rupees 3. That's all for this question. मैं BL Sharma, math sir. Thank you very much. Thank you.